Good morning, everyone. Today we are going to study the second chapter of history of class 6, the earliest society. For the earliest period of human society, there is no written record, so historian and archaeologists depend on archaeological remains and fossils to gather information about it. Their study has shown that human evolved first in Africa, from where they gradually spread to other parts of the globe. Since the tools used by these early humans were mostly made of stone, this period of human evolution is known as the Stone Age. There are different phases of the Stone Age: the Paleolithic or the Old Stone Age, the Mesolithic or the Middle Stone Age, and the Neolithic or the New Stone Age. The Paleolithic Age or the Old Stone Age. The earliest phase of the Stone Age was the Paleolithic Age. The word Paleolithic in a Greek word meaning old stone. All the date of the Old Stone Age varied from region to region. It is generally believed to have lasted between 2.5 million years ago to about 10,000 BCE. Food. Old Stone Age human beings were mainly hunter-gatherer, hunting animals and gathering fruit, nuts and berries for food. Tools. Early humans started making tools out of stone for hunting animals and for protection around 2.6 million years ago. These tools were made mostly of flint, a special kind of stone that could be chipped easily. Therefore, early humans generally settled in areas where there was abundant supply of flint. Shelter. The people in the Old Stone Age lived in natural rock cave or temporary shelter made of sticks, bones, mud and animal hide. Clothing. Early human wore clothes made of animal hide, fur or the leaves and the bark of the tree in order to protect themselves against heat, cold and rain. Fire. According to historian, humans discovered fire and learned to control it in the Paleolithic Age. The human of the Old Stone Age would have known about fire and its uses, having seen forest fire or volcanic eruption. Language and art. Early humans communicate either through sign language or through drawing. The painting mostly depicted human and animal engaged in hunting, war, or play. Early humans may have started developing a spoken language sometime around 1 lakh year ago. The Mesolithic Age or the Middle Stone Age. The Mesolithic Age extended from around 10,000 BCE to 8,000 BCE. This brief period was marked by rising temperature and the retreat of the glacier that had covered large part of the Earth's surface. A variety of grain-bearing grasses become common toward the end of the Mesolithic period. Humans started gathering this grain for food. The large stone tool of the earlier age gave way to smaller, sharper stone tools called microliths. The Neolithic Age or the New Stone Age. The Mesolithic Age gave way to the Neolithic or the New Stone Age. The Neolithic Age witnessed many invention, discoveries and innovation. हिस्ट्री के दूसरे अध्याय फीचर्स द अर्लीस्ट सोसाइटी। इस अध्याय में हम मानव के उन समाज और उस पीरियड के उस समय के बारे में पढ़ेंगे जिसके बारे में कोई लिखित हमारे पास साक्ष्य मौजूद नहीं है या फिर कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है। इसलिए हमें इतिहासकारों और भूगर्भवेत्ताओं
उसके ऊपर में निर्भर करना पड़ता है कि वो भूगर्भ के द्वारा या फिर खुदाई के द्वारा मिले हुए जो सबूत हैं या जो खुदाई के वक्त मिले हुए वस्तुओं के द्वारा जो दी गई जानकारी है उसी के आधार पे हम इन सूचनाओं को प्राप्त करते हैं। उनका जो अध्ययन है वो ये दिखाता है कि मानव का उद्भव पहली बार अफ्रीका में हुआ था और वहीं से वो धीरे धीरे पूरे विश्व में फैले। साथ ही साथ ये भी बताता है कि वो जो थे कि उस समय जब मानव का उद्भव हुआ था उसके बाद वो जो है अधिकांश पत्थर के बने हुए औजारों का ही उपयोग करते थे। इसलिए इस युग को या इस समय को स्टोन एज के नाम से जानते हैं। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के कई अवधियाँ हुई हैं स्टोन एज में, जैसे कि द पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज, द मेसोलिथिक और द मिडिल स्टोन एज एंड द न्यूलिथिक और द न्यू स्टोन एज। द पैलियोलिथिक एज और द ओल्ड स्टोन एज। पैलियोलिथिक जो है सबसे पुराना स्टोन एज का काल माना जाता है। इसमें पैलियोलिथिक का मतलब ग्रीक भाषा में ओल्ड स्टोन होता है, इसलिए इसको ओल्ड स्टोन एज के नाम से भी जाना गया है। इसका काल जो है क्षेत्र से क्षेत्र में भिन्न होता है। हालांकि सामान्य रूप से इसको माना गया है कि इसका अवधि जो है 2.5 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर 10,000 BCE तक था। भोजन। ओल्ड स्टोन एज के मानव जो थे वो खास करके वो घुमंतु थे, शिकारी थे और साथ ही साथ वो संग्रहकर्ता थे। इसलिए वो जानवरों को मारते थे मांस के लिए, फ्रूट नट्स वगैरह इकट्ठा करते थे खाने के लिए। टूल्स। शुरुआती मानव जो है वो जो है अपने टूल्स जो है खास करके पत्थरों से बनाया करते थे ताकि उनसे अपने आप को बचा भी सके और उनसे जानवरों का शिकार भी कर सके। ये जो है शुरुआत 2.6 मिलियन ईयर्स एगो हुआ था। जो टूल्स खास करके जो बनाते थे वो अधिकतर पत्थरों के फ्लिंट होते थे। फ्लिंट मतलब कि पत्थरों के टुकड़े जो कि काफ़ी एक तरफ से काफ़ी नुकीले होते हैं, शार्प होते हैं, उनको फ्लिंट कहते हैं। इस प्रकार के पत्थर जो कि चिप्ड सामने की तरफ से पतले और नुकीले होते हैं। उसके बाद से जो है जनरली अधिकांश मानव जो है उन्हीं एरिया के पास में ज़्यादातर रहने लगे जहाँ पे इन फ्लिंटों का संख्या जो है ज़्यादातर पाया जाता था और वहाँ पर आसानी से मिल जाते थे। इनके आवास शेल्टर। पुराने ओल्ड स्टोन के जो लोग थे वो खास करके प्राकृतिक पत्थर के बने हुए केव में रहना पसंद करते थे या फिर वहाँ पे टेम्प्रोरी शेल्टर बनाकर जो कि लकड़ियों से, हड्डियों से, कीचड़ से, मिट्टी से या फिर जानवरों के हड्डियों से बने हुए घरों को वो अपने लिए निवास स्थान बनाते थे। क्लोथिंग। शुरुआती मानव जो है वो क्लोथ पहनना करते थे, खास करके जानवरों के चमड़ी, उनके फर और कुछ पत्ते। साथ ही साथ वे पेड़ों के छाल को भी अपने लिए पहनावे के में उपयोग में लाते थे। खास करके ये पहनते इसलिए थे ताकि वो गर्मी, ठंड और बरसात से बच सके। आग। इतिहासकारों के अनुसार मानव ने आग की खोज इसी युग के अंतर्गत कर ली थी और वो जान चुके थे कि किस तरीके से इसके ऊपर में नियंत्रण करना है। उसके बाद धीरे धीरे जो है इसके बाद जानने के बाद इसके धीरे धीरे इसके उपयोग को भी उन्होंने जाना और इससे सीखते गए। लैंग्वेज एंड आर्ट। शुरुआती मानव जो है एक दूसरे से संपर्क साधने का साधन जो है वो साइन भाषा में, इशारे में वो या फिर कुछ संकेतों के रूप में वो बातें करते थे या फिर चित्रकारी के द्वारा। अधिकांश जो चित्र प्राप्त हुए हैं उन समय के मानव के द्वारा जो बनाए गए थे उसमें दिखाया गया कि उस समय के मानव जो अधिकांशतः या तो शिकार में लगे होते थे, लड़ाई में या फिर किसी तरह के नाटक वगैरह में। शुरुआती मानव जो है उन्होंने बाद में जो है काफ़ी समय के बाद करीबन 1 लाख वर्ष पहले जो है अपने भाषा को विकसित करना शुरू किया था। द मेसोलिथिक एज और द मिडिल स्टोन एज। मेसोलिथिक एज जो है वो शुरू होता है 10,000 BCE से लेकर 8,000 BCE तक और इसके ब्रीफ जानकारी के बारे में कि ये इसके इस समय जो है धीरे धीरे समय में तापमान का वृद्धि होते गया और उसके बाद ग्लेशियर जो है वो भी पूरे क्षेत्र में फैलते भी जा रहे थे। वहीं पे कई प्रकार के वैसे भी फसल उग रहे थे जो कि घास की प्रजाति के थे लेकिन उनमें फसल या फल उगते थे। मानव जो है इनको पहचान कर
इनको इकट्ठा करना शुरू किया और उसको भोजन के रूप में ग्रहण करते गया, जैसे कि गेहूं का पौधा या फिर हम चावल के पौधे को कह सकते हैं। द लार्ज स्टोन टूल्स, जो इस समय के जो पत्थर जो बनाए गए थे, खास करके ये रास्ते दिखाते कि किस तरीके के उस समय के लोग जो हैं पत्थरों के छोटे छोटे और साफ साफ नुकीले हथियार बनाते थे, जिसको माइक्रोलिथ के नाम से भी जाना जाता था। द न्यूलिथिक एज और द न्यू स्टोन एज। मेसोलिथिक जो है वो युग जो है न्यूलिथिक एज के युग को प्रदान करता है। न्यूलिथिक युग जो है वो गवाही देता है कि किस तरीके से यहाँ से नए नए आविष्कारों, खोजों और नए चीज़ों को खोज शुरू हुआ था। इसी समय के द्वारा ही क्या हो गया कि नए नए मानव ने नए नए आविष्कारों को शुरू किया, नए नए अस्त्रों शस्त्रों को बनाना, नए नए अपने उपयोग में किए जाने वाले सामानों को और वस्तुओं को बनाना शुरू किया था।